गति, यह हर जगह है। वेलकम एक्सप्लोरर्स, नमस्ते खोजियों, वेलकम। टुडे we're diving into the fascinating world of motion with class 9 chapter 1। आज हम कक्षा 9 अध्याय 1 के साथ गति की रोमांचक दुनिया में गोता लगाएंगे। Get ready to unlock the secrets behind every moving object you've ever seen। हर उस चलती हुई चीज के पीछे के रहस्यों को जानने के लिए तैयार हो जाइए जो आपने कभी देखी है। We'll break down the key concepts you need to know। हम उन मुख्य सिद्धांतों को समझेंगे जिन्हें आपको जानना जरूरी है। From what motion even गति क्या होती है। And trust me, it's more than meets the eye। और यकीन मानिए, यह दिखने से ज्यादा है। To the different ways things can move। We're talking speeding cars, spinning tops, चीजें कैसे कैसे घूम फिर सकती हैं। हम तेज रफ्तार कारों, लट्टू, even the swing set at the पार्क में झूले तक की बात कर रहे हैं। So strap on your thinking caps and let's get this science party started। तो सोचने वाली टोपियां पहन लीजिए और विज्ञान की इस पार्टी को शुरू करते हैं। गति क्या है? Have you ever really thought about what makes something? क्या आपने कभी सोचा है कि किसी चीज को मतलब thought about it, इसके बारे में सोचा है? Is it magic? Not quite। क्या यह जादू है? बिल्कुल नहीं। Motion is simply a change in position over time। Look around you। Cars zooming by, गति बस समय के साथ स्थिति में बदलाव है। अपने आसपास देखो, तेज रफ्तार कारें, birds soaring through the air, हवा में उड़ते पंछी, even the earth spinning on its axis, that's all motion। यहां तक कि अपनी धुरी पर घूमती पृथ्वी, ये सब गति है। गति के प्रकार। Now motion isn't just going straight ahead like a cheetah on the hunt। अब गति सिर्फ सीधी रेखा में आगे बढ़ना नहीं है जैसे शिकार पर निकला चीता। Nope, it can be a whole lot more interesting। नहीं, ये बहुत ज्यादा दिलचस्प हो सकता है। We've got linear motion like a train chugging along a track। हमारे पास रेखीय गति है जैसे पटरी पर चलती ट्रेन। Then there's rotational motion। Picture a spinning top or a merry-go-round। फिर घूर्णन गति है, एक घूमते हुए लट्टू या झूले की कल्पना करो। And don't forget oscillatory motion like a pendulum swinging back and forth। और दोलन गति को मत भूलना, जैसे आगे पीछे झूलता हुआ पेंडुलम। So many ways to move and groove। घूमने फिरने के कितने सारे तरीके। दूरी और विस्थापन। Distance and displacement sound similar, but they're not quite the same। दूरी और विस्थापन एक जैसे लगते हैं, लेकिन वे बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। Distance is the total path traveled, like taking a winding road through the mountains। दूरी तय किया गया कुल रास्ता है, जैसे पहाड़ों से होकर गुजरने वाली घुमावदार सड़क। Displacement, however, is the shortest distance between the starting and ending points। हालांकि विस्थापन शुरुआती और अंतिम बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी है। Think of it as drawing a straight line from point A to point B। इसे बिंदु A से बिंदु B तक एक सीधी रेखा खींचने जैसा समझो। Chapter 4, अध्याय 4, गति और वेग। Here's where things get really interesting। यहाँ चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। Speed tells us how fast an object is moving। गति हमें बताती है कि कोई वस्तु कितनी तेजी से चल रही है। But velocity tells us both its speed, लेकिन वेग हमें उसकी गति डायरेक्शन और दिशा दोनों बताता है। So, a car going 60 kilometers per hour to the east to पूर्व दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली कार का वेग has a different velocity than a car going 60 kilometers per hour to the west। पश्चिम दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली कार से अलग होता है, even though their speeds are the same। भले ही उनकी गति समान हो। Chapter 5, अध्याय 5, औसत गति और औसत वेग। We can't always travel at the same speed, can we? हम हमेशा एक ही गति से यात्रा नहीं कर सकते हैं ना? Sometimes we speed up, sometimes we slow down। कभी हम गति बढ़ाते हैं, कभी हम धीमे हो जाते हैं। That's where average speed and average velocity come in। यहीं पर औसत गति और औसत वेग काम आते हैं। Average speed is the total distance traveled divided by the total time taken। औसत गति तय की गई कुल दूरी को कुल समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। While average velocity considers both the total displacement and total time। जबकि औसत वेग कुल विस्थापन और कुल समय दोनों को ध्यान में रखता है। Chapter 6, अध्याय 6, एक समान और असमान गति। Imagine a car cruising down an empty highway at a constant speed। That's uniform motion। एक खाली हाईवे पर स्थिर गति से चलती कार की कल्पना करो। यही एक समान गति है। But let's be real, life is rarely uniform। लेकिन असल जिंदगी में जिंदगी शायद ही कभी एक समान होती है। Most motion is non-uniform, meaning the speed or direction changes over time। ज्यादातर गति असमान होती है,
मतलब गति या दिशा समय के साथ बदलती रहती है। थिंक ऑफ अ बस स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग इन ट्रैफिक। ट्रैफिक में रुकती और चलती बस के बारे में सोचो। चैप्टर 7 एक्सेलरेशन त्वरण। होल्ड ऑन टाइट बिकॉज वी आर टॉकिंग एक्सेलरेशन। कसकर पकड़ो क्योंकि हम त्वरण की बात कर रहे हैं। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। त्वरण वेग परिवर्तन की दर है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट गोइंग फास्टर, इट्स अबाउट यह सिर्फ तेज जाने के बारे में नहीं है। यह द वेलोसिटी चेंजेस, वेग में बदलाव के बारे में है। अ कार स्पीडिंग अप, स्लोइंग डाउन और इवन चेंजिंग डायरेक्शन इज एक्सेलरेटिंग। गति बढ़ाती, धीमी होती या दिशा बदलती कार में त्वरण हो रहा है। चैप्टर 8 इक्वेशंस ऑफ मोशन, गति के समीकरण। गेट रेडी फॉर सम मैथ। कुछ गणित के लिए तैयार हो जाइए। डोंट वरी, इट्स नॉट एज स्केरी एज इट साउंड्स। चिंता मत करो, यह सुनने में जितना डरावना लगता है उतना है नहीं। इक्वेशंस ऑफ मोशन हेल्प अस प्रिडिक्ट द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट टाइम्स। गति के समीकरण हमें अलग अलग समय पर किसी वस्तु की स्थिति, वेग और त्वरण का अनुमान लगाने में मदद करते हैं। These equations are like tools that unlock the secrets of motion, allowing us to understand how objects move in a much deeper way. ये समीकरण ऐसे उपकरणों की तरह हैं जो गति के रहस्यों को उजागर करते हैं, जिससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि वस्तुएं कैसे चलती हैं। Chapter 9 Circular motion, वृत्तीय गति। Round and round it goes, गोल गोल घूमता रहता है। Circular motion is everywhere, from the planets orbiting the sun to a spinning Ferris wheel. वृत्तीय गति हर जगह है, सूर्य की परिक्रमा करते ग्रहों से लेकर घूमते हुए फेरिस व्हील तक। In circular motion, the object moves in a circular path with a constant speed, but its velocity is constantly changing because its direction is always changing. वृत्तीय गति में वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर स्थिर गति से चलती है, लेकिन उसका वेग लगातार बदलता रहता है, क्योंकि उसकी दिशा हमेशा बदलती रहती है। आउटरो, कीप ऑन मूविंग, गति में रहो। कंग्रेचुलेशंस साइंस सुपरस्टार्स, बधाई हो विज्ञान के सितारों। We've explored the ins and outs of motion, from the different types to the equations that govern it all. हमने गति के बारे में सब कुछ जाना है, अलग अलग प्रकार से लेकर इसे नियंत्रित करने वाले समीकरणों तक। Remember, motion is all around us, constantly shaping the world we live in. याद रखें, गति हमारे चारों ओर है, जो हमारे रहने वाले दुनिया को लगातार आकार दे रही है। Keep those brains buzzing and never stop questioning the science behind the amazing world around you. Thanks for watching. अपने दिमाग को सक्रिय रखें और अपने आसपास की अद्भुत दुनिया के पीछे के विज्ञान पर सवाल करना कभी बंद न करें। देखने के लिए धन्यवाद। We hope this breakdown of Class 9 Chapter 1 Motion has been helpful. हमें उम्मीद है कि कक्षा 9 अध्याय 1 गति का यह विश्लेषण मददगार रहा होगा। Don't forget to like, share and subscribe for more educational content. अधिक शैक्षिक सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।